Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 5, Techniques of Integrations of Mathematics. Today's topic are substitution rule, integration by parts, trigonometrical integration, trigonometrical substitution, integration of rational function by partial fraction. First of all, what are the different type of integration techniques? हमारे पास इंटीग्रेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनल फंक्शन को हम लोग बाय पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट rationalizing substitution, the continuous function which do not have elementary antiderivatives. Improper integral, they are of two types. One is our infinite integral, second one is discontinuous integrals. Approximate integration, मिड पॉइंट रूल से सॉल्व करेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल से, सिम्पसन रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। देयर आर सम इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज जो हम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। First of all, integration of x raised to power n into dx is equal to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1, where n is not equal to 0. Here I want to give an example of this particular formula. If I have integration of x square, मेरे पास x square का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो किसके इक्वल आएगा? x raised to the power 2 plus 1, that is x cube, divided by 2 plus 1, that is 3. So integration of x square is equal to x cube by 3. Second formula is equal to integration of 1 upon x into dx, वो हमारे पास इक्वल होता है log of x के। Here I want to give an example. If I have 1 upon x into dx, that is equal to log of x. Second example, integration of e raised to the power x into dx. So e raised to the power x into dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? That always come to the e raised to the power x. Integration of a raised to the power x is equal to a raised to the power x divided by log of a. Next, formula number 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस एक्स। देखिए, जब हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं वो कोस एक्स के इक्वल आता है माइनस ऑफ कोस एक्स। बट जब हम लोग डेरिवेशन की बात करते थे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था हमारे पास कोस एक्स। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन तो हमारे पास साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है मेरे पास माइनस ऑफ कोस एक्स, तो एक माइनस एक्स्ट्रा साइन आ जाता है। इन द सिमिलर मैनर, जब हम लोग कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो डेट कम्स टू साइन एक्स, बट व्हेन वी डू द इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डेट कम्स माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारे पास जो प्लस टर्म होती थी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, जो माइनस होती थी वो प्लस हो गया। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डेट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ एक्स। Integration of cosecant x into cot x is equal to minus of cosecant x. Integration of secant x into dx is equal to log of secant x plus tangent x. Integration of cosecant x into dx is always equal to log of cosecant x minus of cot x. Here another formulas. One is integration of tangent x is equal to log of secant x. इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक, ये क्या है मेरे पास? साइन हाइपरबोलिक है। एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। इन द सिमिलर मैनर, कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tangent inverse x upon a. Here we can take an example. If I have dx upon x square plus 2 square, so that always come 1 upon 2 tangent inverse x divided by 2. Next is equal to dx under root of dx divided by under root of a square minus x square is equal to sin inverse x upon a. Here another formula number 19 and formula number 20. Integration of 1 upon x square minus a square minus 2 upon a
log of 1 upon x प्लस a दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ वेरी कॉमन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हम लोग उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं. सो इफ़ आई हैव द टू फंक्शन, वन इज़ अवर यू एक्स एंड अनदर इज़ अवर वी एक्स, और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो डेट ऑलवेज कम टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू वी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. देखिए जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में रूल यूज़ करते थे बाय पार्ट्स का, इन द सिमिलर मैनर वी हैव अ रूल इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इफ़ आई से कि मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालना है तो मैं उसको कैसे निकालूंगी, दैट इज़ इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया, सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो उन दोनों का इंटीग्रेशन ले लिया, प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन और उन सब का इंटीग्रेशन ले लिया. सो वी कैन से दैट देयरफॉर इफ वन ऑफ द टू इंटीग्रल दैट इज, हम इंटीग्रेशन ऑफ यू डिफरेंशिएशन ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स इंटू डी एक्स एंड integration of ux into differentiation of ux into dx is easy to calculate, we can use it, go to the another one, and this is the main idea behind the integration by parts. अब हम इसको एक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट को 0 to 1, जहाँ मेरे पास जो लिमिट है वो 0 to 1 पे जा रही है. हियर वी हैव एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स. नाउ वी कैन अप्लाई, हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास बाय पार्ट्स का फार्मूला. सो बाय पार्ट्स में क्या होता था, मेरे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हम लोग एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन लेंगे डेट कम्स टू 2x एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो हेयर, और फिर हम उसका क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस हम लोग करेंगे, क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2x इंटू ई रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स. नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है और इसको बाय पार्ट्स हमें सॉल्व करना है. देखिए हम इसको बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करेंगे. हेयर वी हैव टू टर्म्स, वन इज़ x एंड वन इज़ ई रेज टू द पावर x. सो हेयर वी कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. हेयर यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स. तो हम लोगों ने पहले क्या किया, एज टू इज़ माई कॉन्स्टेंट, मैंने उसको बाहर ले लिया. सो एक्स हमने इस सेकेंड फंक्शन को लिया ई एस टू द पावर एक्स, हम लोगों ने 0 to 1 कर दिया. सेकेंड टाइम ने हम लोगों ने जब x का डिफ्रेंशिएशन लिया, सो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मेरे पास 1 होता है. सो मेरे पास ई रेज टू द पावर एज इट इज़ आ गया. सो नाउ अप्लाई द लिमिट, हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं. सो देखिए हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स 0 to 1 माइनस 2 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, लिमिट गोज 0 to 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, लिमिट गोज 0 to 1. पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या होता है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लेट्स सोल्व दिस, हम इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइंड आउट द आंसर. उसके बाद हम यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली क्या होगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास किस टाइप का आएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इन डी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 2. जब हमने लिमिट अप्लाई की डेट कम्स टू ई माइनस 2, तो हमारे पास वो क्या आ गया, ई माइनस 2. सो हेयर इज एन अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक अनदर एग्जाम्पल यूज़ किया है. सो हेयर सम एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना था. सो देखिए हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे. सेकंड हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे. इसको हम लोगों ने रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डेट कम्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. नाउ वी कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन.
as we have already studied about integration of x raised to power n is equal to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x raised to the power क्या आएगा हमारे पास हाफ प्लस 1 डेट इज x raised to the power 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और x का जब हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आंसर आएगा x raised to the power 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x स्क्वायर बाय 2। सो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जब मुझे इंटीग्रेशन करना होता है, मेरे पास टू टर्म्स हैं डेट इज इन समीशन, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी हैव लर्न अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ टू एडिशनल टर्म्स। मेरे पास टू टर्म्स का हम लोगों ने ऐड किया जो मेरे पास इंटीग्रेशन में थी, डेट ऑलवेज कम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। सो हेयर अवर फर्स्ट टर्म इज रूट एक्स, हमने रूट एक्स को सोल्व किया बाय अवर table of formulas that is equal to x raised to the power n। as we know x raised to the power n का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x raised to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था हमारे पास that is equal to x raised to power 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x square by 2। now here is an another example, integration of tangent theta divided by secant square theta। first of all हम लोगों को पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो हम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई कर दिया और टेंजेंट थीटा की भी वैल्यू रख दी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो इन द फर्स्ट स्टेप वी पुट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। हमने लिमिट यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ देखिए हमारे पास कोस से एक कोस को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो इट कम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए हम लोग इसको कुछ सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। एज वी नो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डेट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो हमारे पास वो इक्वल आता है साइन ऑफ 2 थीटा का। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया था, हाफ से डिवाइड किया था, तो हाफ से जो डिवाइड किया था वो यहाँ पे रह गया और हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा साइन ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। एज वी नो अब साइन ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस ऑफ कोस थीटा। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2 किस लिए है, जब हम लोग 2 थीटा का इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल द आंसर विल बी, तो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हाफ कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 1/4 कोस ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर। एज वी नो इट इज गिव्स अस द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, हम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। सो पुट द वैल्यू हेयर 1 इन ऑन द बिहाफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ वी कैन अप्लाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो हमें क्या फॉर्मूला देता है साइन ऑफ 2x का, तो हम वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन ऑफ 2x कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हमारे पास निकल के आ जाता है। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो हमारे पास आंसर होगा डेट इज इक्वल टू x प्लस, हमारे पास आंसर हो जाएगा
x प्लस माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय 2। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। लुक फॉर द ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही देखेंगे। लाइक हमने प्रीवियस के अंदर क्या किया था, हम लोगों ने एक फॉर्मूला को ऑप्ट करने के लिए तो हमने क्या कर दिया था वहाँ पे पर्टिकुलर, उसमें हम लोगों ने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से डिवाइड कर दिया था। बेसिक क्या था हम लोगों ने किस लिए किया था, बिकॉज इट विल गेट अस इट सो दैट वी कैन गेट सम कॉमन फॉर्मूलेशन, हम लोगों के पास एक कॉमन फॉर्मूलेशन आ जाए जिससे हम लोग अपने इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकें। नेक्स्ट इज अवर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, देखिए मैनी इंटीग्रल्स आर हार्ड टू परफॉर्म एट फर्स्ट हैंड एज अ स्मार्ट आइडिया कंसिस्ट इन क्लीनिंग दैम थ्रू एन अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन विच ट्रांसफर द गिवन इंटीग्रल इनटू द इजियर वन। देखिए हमारे पास क्या है, हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि वो हमारे पास एक इजियर वन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सो इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, कम अप विद द सब्स्टिट्यूशन, हम लोग एफ एक्स इंटू डी एक्स के में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स, देन आइडली यू मे वॉन्ट टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ यू एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इन्वर्स ढूंढ लेते हैं। देखिए पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, यहाँ पे हम लोग उसको शो भी कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी फंक्शन है, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सम फंक्शन। हम क्या करते हैं, मेरे पास मान लो हमें गिवन है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है एफ एक्स का, तो हम एक फंक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सम यू एक्स को, यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। सच दैट क्या होगा, यू में वॉन्ट टू फाइंड आउट द इनवर्स, सो डैट कि हमारे पास उसका इनवर्स भी हो, मीनिंग डैट एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू हो हमारे पास, ताकि हम लोग उसमें पुट करें तो हमारे पास इजिली वो सोल्व हो सके। इट मीन्स वो हमारे पास किस टाइप का बैकअप दे, लाइक हमारे पास ऐसा हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डेक्स यू। देखिए हमारे पास क्या होगा, एक डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि वो कैंसिल आउट हो सके और हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास, उससे हम लोग अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। सो मूविंग टूवर्ड स्लाइड, हम अपनी स्लाइड पे मूव करते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट सम फंक्शन दैट इज u इज इक्वल टू जी एक्स। देखिए हम एक फंक्शन ट्राई करेंगे इन द इंटीग्रल हुज डिफरेंशिएशन यू एक्स, जिसका हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो भी हमारे उसके अंदर अकर होना चाहिए। लाइक जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन है, हमारे पास हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया टर्म्स में, एक टर्म लिख ली और साथ के साथ वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ सेम टर्म, हमारे पास उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सोल्ट आउट इजिली कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इन द इंटीग्रल, हमारे पास एक टर्म है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। नोट हम इसमें क्या कर लेते हैं, क्यू एक्स ले लेते हैं, डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हम इस यू एक्स का डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, डेट कम्स टू 2x। तो हमारे पास क्या है, हमने इस पूरी टर्म को बाइब्रिफिकेट कर दिया। हमने क्या किया, अब नीचे वाले टर्म को यू एक्स में पुट कर दिया और ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, 1/2 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यू, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को u के इक्वल पुट कर देंगे और जो हमारे पास 2x था उसको du के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, u और du दोनों हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन भी है उसका और सॉरी डिफरेंशिएशन भी है। सो हमारे पास उसमें उस टर्म में क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और हमें सिंपल किसको सॉल्व करना होगा, 1/2 को। सो द आंसर इज इक्वल टू 1/2 x। तो हम वहाँ पे इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने सब्स्टिट्यूशन से क्या किया, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या थी हमारे पास, हमने उसको एक बेटर और गुड वे में सॉल्व कर लिया। सो अ बेटर सब्स्टिट्यूशन इज समथिंग हार्ड टू फाइंड एट वन हैंड। देखिए हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस्ड होते रहते हैं तो हमें बेसिकली पता लगता रहता है कि हमें कहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एट द वेरी बिगिनिंग अ बेटर सब्स्टिट्यूशन इज समटाइम hard to find at the first hand, therefore we do not recommend spending a lot of time। हम लोग इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं कि आपको अ लॉट ऑफ टाइम अ गुड फीलिंग के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। इससे बेटर ये है कि आपके पास अनदर कोई मेथड है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एज सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो हमारे पास बेटर होता है एज द टाइम गोज ऑन। हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास टाइम अच्छा होता रहता है, हमारे पास टाइम एक्सपीरियंस आता रहता है, वैसे वैसे हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू अवर ट्रिग्नोमेट्रिकल
हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के ऊपर मूव करते हैं। देखिए हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, कुछ अपने फॉर्मूलाज लगा के चलते हैं, कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स होती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। सो देखिए हमारे पास क्या है, वी यूज़ द सब्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड। हमारे पास कौन कौन से हम लोग सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं। इफ़ एफ एक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, मेरे पास एफ एक्स प्रोडक्ट है साइन एक्स इंटू कोस एक्स का। देखिए मेरे पास एफ एक्स प्रोडक्ट है मेरे पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स का, तो हम लोग इसको कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से डिवाइड कर दें। जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, डेट कम्स टू साइन ऑफ 2x। तो हम बेसिकली जो हमारे पास कॉमन फॉर्मूलेशन है हम उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। इफ़ आई हैव साइन एक्स, तो मैं साइन एक्स को समटाइम कोस एक्स में चेंज कर देती हूँ, डेट इज़ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास क्या होता है, इफ़ वी यूज़ द सब्स्टिट्यूशन एज द प्रोडक्ट ऑफ साइन माइनस साइन एक्स एंड कोस एक्स, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैव द प्रोडक्ट लाइक माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड एक्स, तब हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैव माइनस ऑफ कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, तब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लेते हैं। हेयर आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। इफ़ आई हैव, इफ़ मेरे पास कुछ ऐसी टर्म है जिसको मुझे सॉल्व करना है, लाइक इफ़ आई हैव लाइक ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डेट ऑलवेज कम टू ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर टी। इफ़ आई हैव ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर टी, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर टी। इफ़ आई हैव ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर टी डेट माइनस ए स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर टी। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स शो कर रही है। गिवन, हमारे पास गिवन है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो हाउ वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। द डिनोमिनेटर कुड बी फैक्टराइज, हम इसमें पर्टिकुलर क्या करते हैं, फर्स्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एज सच हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, हमने देखा कि हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते थे। सो द डिनोमिनेटर कुड बी फैक्टराइज टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। दिस would may have a new denominator for the two factors, two fractions। तो उसने क्या दिया, हमें एक न्यू डिनोमिनेटर दे दिया। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक डिनोमिनेटर और दूसरे डिनोमिनेटर को अलग करके उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एड दिस न्यू फ्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट। मेक श्योर यू ब्रिंग ऑल एक्स टर्म्स टुगेदर एज वेल एज ब्रिंगिंग ऑल द कॉन्स्टेंट टुगेदर। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास हम लोग कोशिश करेंगे जो मेरे पास ऑल एक्स हैं उनको टुगेदर रखेंगे और जो भी मेरे पास कांस्टेंट है हम उसको टुगेदर रखेंगे। हेयर देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। हेयर आई वांट टू सॉल्व आउट x माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू इंटू डी एक्स। नाउ मैंने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया। डेट कम्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। तो डेट कम्स टू a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेट इज इक्वल टू, हमने अगेन इसको सॉल्व किया, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 5। नाउ हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे पास x वाली टर्म थी उसको हम लोगों ने अलग रख लिया और जो मेरे पास y वाली टर्म थी उसको हम लोगों ने अलग कर लिया। डेट कम्स टू x इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ऑफ 2a प्लस 2b। एज सच ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट है और ये मेरे पास x की टर्म है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। तो इस पर्टिकुलर मैनर से भी हम लोग इजीली उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो देखिए हम लोगों ने क्या किया, आगे हमारे पास x इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ऑफ 2a प्लस 5b था, हमने उसको सॉल्व करना था। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर टर्म क्या रिफ्लेक्ट कर, a प्लस बी रिफ्लेक्ट करती है 1 को। सो इट कम्स 9 माइनस x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9। एक्स प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास किसके है, माइनस 9 के इक्वल है। देखिए पूरी टर्म मेरे पास इसके इक्वल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। अभी तक हम लोगों ने पिछली स्लाइड में इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास कुछ ऐसा आया था, डेट इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ कंपेयर दीज टर्म्स, हम लोग सभी टर्म को कंपेयर करते हैं। एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट वाली के साथ। सो हियर x प्लस 1, इसका आगे कोफिशिएंट क्या है, x के आगे हमारे पास 1। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड हियर
माइनस ऑफ 2a प्लस 5 इज इक्वल टू -9। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, हमने a की वैल्यू निकाल के इस सेकेंड इक्वेशन में पुट की, जिससे हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सो द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, राइट हैंड साइड में 1 है। इन ऑर्डर टू कीप द इक्वालिटी ट्रू, हम इस इक्वालिटी को ट्रू रखना है। द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू 1। सो इसका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए था, हमारे पास 1 के इक्वल होना चाहिए था। सो बाय कंपैरिजन a प्लस b इज इक्वल टू 1 ऑन सेम थिंग विद द कांस्टेंट इफ द इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। ये हमारे पास इक्वालिटी ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -9। टू सॉल्व फॉर a एंड b यू यूज मेथड फॉर अलजेब्रा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग इसके लिए अपना अलजेब्रा सिस्टम, इट मीन्स मैंने यहाँ से कोई वैल्यू a की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस b, पुट दिस 1 minus b in this equation. Now find out the value of b. If you multiply a plus b is equal to 1 by 2, you will see what b is equal to -1. Therefore a is equal to 2. जो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, अब 2 आ जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, अब हम उसके अंदर अपने a एंड b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो a is equal to 2 एंड b is equal to -1. We can simplify put them. हमने उनको सिंपली पुट कर दिया। हमारे पास इक्वेशन थी a डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो डेट्स कम्स टू 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू डी एक्स। एज वी नो, अब हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x। मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता था, log x होता था। सो वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 5, वो क्या होगा मेरे पास, log ऑफ x प्लस 5 होगा। एंड वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ, इन द सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, log ऑफ x माइनस 2 के। सो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास आ गया 2 log x प्लस 5 माइनस log x माइनस 2 प्लस c। व्हाट इज c हियर, C is some constant। C क्या होता है, मेरे पास कोई भी constant हो सकता है। Another example here is I have an another example for, मेरे पास यहाँ पे एक another example है। So इसमें हम लोगों ने क्या किया, given if the numerator have higher degree than the denominator। देखिए हमारे पास पिछली बार टर्म में हमारे पास क्या था, denominator have the higher term as compared to numerator। Now in this particular example मेरे पास जो न्यूमरेटर है has a higher degree than the denominator, उसके पास मेरे पास higher degree है as compared to denominator। So how to solve this particular problem? So next question जो हमारे पास माइंड में अराइज होता है कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग कौन सी फॉर्मुलेशन यूज़ करेंगे। इफ़ यू एग्जैक्टली डू द लॉन्ग डिवीजन यू विल गेट x minus 1 divided by x plus 1। दिस इज़ वेरी इजी टू इंटीग्रेट। सो हम लोगों ने इसको पर्टिकुलर क्या किया, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर लिया। इसको डिवीज़न निकाल के हमने इसमें देख लिया क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। सो डेट कम्स इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस वेरी इजली। We know x integration is equal to x square by 2. We know 1's integration is equal to x, and we know integration of 1 upon x plus 1 that is equal to log of x plus 1 plus c। अगेन मेरे पास दिखाता है कि मेरे पास कांस्टेंट कौन सा होगा। नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ चेक इफ द टॉप डिग्री इज बिगर देन द बॉटम, इफ सो परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन राइज होता है कि किसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे और कब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड को हमें फॉलो करना चाहिए। सो इन 2 क्वेश्चंस का रिप्लाई क्या रहता है हमारे पास, इफ़ द टॉप डिग्री इज बिगर देन द बॉटम, जो मेरे पास टॉप डिग्री है इट मीन्स न्यूमरेटर है जो उसकी डिग्री मेरे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना चाहिए। इफ़ द डिनोमिनेटर इज फैक्टरेबल, इफ जो मेरे पास डिनोमिनेटर है फैक्टरेबल होना चाहिए एज वी हैव डन इन अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। जो मेरे पास डिनोमिनेटर था हम उसको फैक्टराइज कर पा रहे थे। सो इफ द डिनोमिनेटर इज
जो है हमारे पास फैक्टरेबल है, देन एज्यूम दैट डिनोमिनेटर ऑफ अ न्यू फ्रैक्शन विल बी दोज फैक्टर, जो डिनोमिनेटर के न्यू फ्रैक्शन से आएंगे वो मेरे पास दोज फ्रैक्शन को फॉलो करेंगे। नाउ हेयर क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर प्रॉब्लम। सो दिस इज, देखिए उस सिचुएशन में जहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसके हम लोग फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सो दिस इज रियली नो डिफरेंट देन द ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। सो स्ट्रिक्टली रेशनल फ्रैक्शन विद अ क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, टू मेक द डिनोमिनेटर इजियर टू वर्क विद यू मस्ट कंप्लीट द स्क्वायर। देखिए अब हमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, दो फैक्टराइज टर्म चाहिए है। वो फैक्टराइजेशन टर्म कब आएंगी, जब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कंप्लीट स्क्वायर होगा। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक स्क्वायर बना देंगे। वो स्क्वायर बन जाता है तो हम इजिली उसके अंदर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और इधर बाय फैक्टराइजेशन हम उसको सोल्व कर सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन से सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, और उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे ताकि हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकें, और उसको हम लोग बाय उसके बाद इंटीग्रेशन से हम इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्क्वायर को कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये कैसे वर्क करता है। सो लुक एट द डिनोमिनेटर, टेक द कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड बाय 2। हम लोग जो x का कोफिशिएंट होगा उसको लेंगे, उसको करेंगे 2 से डिवाइड। हेयर अवर कोफिशिएंट ऑफ x, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4, हम इसको लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। नाउ जो भी हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स टू 2, और उसका हम लोग स्क्वायर लेते हैं। सो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सो द रिजल्ट वुड फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन एडेड 2। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जब हम उसको ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x में। इट मीन्स इसके अंदर हम लोग 4 को ऐड कर देते हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या बनाता है मेरे पास, x प्लस 2 होल स्क्वायर बनाता है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर मिल जाता है। सो द परफेक्ट स्क्वायर वुड बी x प्लस 2 स्क्वायर। हाउएवर वी हैव a 5 इफ यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4। हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट 4 कर दिया, एंड -4 विल बी यील्ड 1। सो यू हैव द फॉर्म, हम लोगों को पर्टिकुलर a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म मिल जाती है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने इसको एग्जांपल से सॉल्व किया। हमारे पास एग्जांपल था 3x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। हम लोगों ने इसमें क्या किया, नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिया। देखिए हमने सबसे पहले देखा कि जो मेरे पास बॉटम है डेट हैव द हायर डिग्री एज कंपेयर टू टॉप। सो हम इसके अंदर क्या करते हैं, देखते हैं कि इज इट फैक्टरेबल। हमने देखा कि फैक्टरेबल है या नहीं है। बाय सीइंग हम लोगों ने एनालिसिस किया कि फैक्टरेबल नहीं है। ये फैक्टरेबल नहीं है तो हमने इसमें क्या लगाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता था, हम लोग जो मेरे पास x की टर्म है, हम x की जो कोफिशिएंट है हम उसको निकालते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, देन उसका स्क्वायर लेते हैं, सेम टर्म को हम लोग ऐड करते हैं और सेम टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हेयर इट कम्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 4 प्लस 4 इंटू dx। नाउ 3x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और हम लोगों ने यहाँ से 4 ले लिया प्लस 1। हम लोगों ने क्या किया, 5 को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, डेट इज प्लस 4 माइनस 4 से हमारे पास ये पर्टिकुलर टर्म आ गई, डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। नाउ वी कैन सोल्व दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। हम लोग इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। हेयर इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लेंगे। हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज को। सिंस वी हैव यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए हमारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। सो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, टेंजेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
सो पुट हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया u इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ए इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू ए प्लस टेंजेंट x प्लस 2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी हैव 3 इंटू टेंजेंट थीटा माइनस टू डिवाइडेड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी एक्स. सो पर्टिकुलर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. हियर आर सम एग्जाम्पल व्हाट टू पुट. हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड हमें शो करती है कि हम इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे, किस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमें कैसा सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पुट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड मुझे वही दिखाती है किस सिचुएशन में हमें क्या पुट करना चाहिए. एज वी नो देखिए हमारे पास लास्ट में भी क्या बनता था, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया था 3 टेंजेंट x माइनस टू डिवाइडेड बाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू सेकेंड एक्स इंटू डी एक्स. तो हम उसका आंसर इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या कौन कौन से हमारे पास बेसिक है, हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं. डेट इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा माइनस 6 हम लोगों ने क्या किया, इससे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू डी थीटा. अगेन सोल्व किया. देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इसमें साइन की फॉर्म बन गई. अब साइन का तो हम लोग निकाल सकते हैं. एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं. डेट कम्स टू 1/3/2 माइनस कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2. फिर हमने क्या किया, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोस ऑफ 2 थीटा इंटू 8 थीटा हमारे पास आंसर आ गया. सो हेयर द पर्टिकुलर फॉर्मूलाज डेट वी यूज. हमारे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने यूज़ किया था. x प्लस 2 को हम लोगों ने टेंजेंट थीटा पुट कर दिया था. टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लोग सेकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 गिव्स अस हमें क्या देगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा देता है. हम लोगों ने यहाँ पे किया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा. तो इन दिस पर्टिकुलर मैनर वी कैन ईजिली फाइंड आउट द इंटीग्रल पार्ट को हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. Now in the next slide there are some question for all of you people. At the very beginning my first question is integrate limit goes 0 to 1 x square into e raised to the power x into dx. Here we have two terms, so we can solve this by the part of integration formulas. तो हम इसको solve करते हैं by part solve कर सकते हैं. In the second question I have cos of 2x into e raised to the power 3x. Again हम लोग इसको solve करेंगे by हम पार्ट्स मेथड. तो हम इसको अगेन बाय पार्ट्स मेथड सोल्व करेंगे. एज वी आई ऑलरेडी डन, हम लोगों ने ऑलरेडी किया है. बाय पार्ट्स में हम लोग कैसे सोल्व करते थे, बाय पार्ट्स में हम लोग करते थे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म और उन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते थे. प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज रहती थी, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे और उससे उन दोनों के प्रोडक्ट से जो आती थी उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते थे. सो ux into vx, differentiation of ux into vx into dx is equal to u dash x into vx into dx, then differentiate then integrate, then plus integration of ux plus v dash x into dx. तो उससे हम लोग पर्टिकुलर निकाल सकते हैं कि उनका इंटीग्रेशन क्या रहेगा. सो टुडे वी विल वाइंड अप अवर सेशन हेयर. वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.